CA Pankaj Jindal ji, National Secretary Finance Committee, Swavlambi Bharat Abhiyan, Mr. Devinder Singh ji, Nodal Officer, Prime Minister Employment Innovation Program Punjab, Mr. Siddharth Sharma ji, Coordinator of Swavlambi Bharat Abhiyan, Mr. Vinay, organizing needs and dear students, a very good afternoon to all present here. As it is our tradition to जय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा देवी जय जय our college, to our guests, that Hansraj Mahila Mahavidyalaya is a premier institution of North India, established in 1927 and for the past 97 years providing multi-faculty, value-based, job-oriented higher education to women, and presently we have more than 4,000 students on roll. The college has ranks in various rankings from time to time. Providing education with moral values along with holistic growth of the students is the very essence of our college, and with the constant support and guidance of our respected principal ma'am, Professor Dr. Mrs. Ajay Sareen, we keep on organizing various workshops, conferences, seminars for our students. Today's seminar is on the topic of Wake Up the Entrepreneur in You, a mission for self-reliance, an initiative under Swavlambi Bharat Abhiyan in collaboration with Swadeshi Jagran Manch. It is an initiative to spread awareness among people about startups, entrepreneurs and jobs, etc., and to motivate masses to become job creators rather than job seekers, and making India a self-reliant nation. Without taking much time, I would like to call Mrs. Meenu Kohli, Head PG Department of Commerce and Management, for the formal welcome of our guests and to say few words on today's event. Bilal ji, All India Organizer, Swadeshi Jagran Manch, New Delhi, member, Sekar Bharati Organization. Government of India has set for the nation. It focuses on promoting entrepreneurship, innovation and local manufacturing. It encourages the youth to become self-reliant and independent by providing them various opportunities and resources. Some of the key components include Atmanirbhar Bharat, Make in India, Digital India, Skill India, Startup India. So अगर मैं short में इसको बोल लूँ तो message to the current youth of the nation is be a job provider than a job seeker. I feel proud to share that HMB has always taken a lead in this direction under the able guidance of our worthy principal ma'am, Professor Dr. Mrs. Ajay Sareen, the lady with dynamic leadership qualities and a great visionary. It's her vision and efforts that HME has many startups to its credit, like HME Zyka, Parvaz Nari Ki Udan, Creative Den, HME Kaya, Bees Pataka, HME Mission Haryali, student startup of Eco Planters. Our principal's ma'am's vision is to instill entrepreneurship, marketing and organizational skills among the students of the institution. With these innovative thoughts in mind and to provide practical experience in a real life situation to our students, a novel idea was generated by our revered principal ma'am in 2017 in the form of Trade Fair Fiesta. It's her able guidance, encouragement and support that Trade Fair has become now annual feature of Department of Commerce. I would like to share here for the dignitaries that every year students put up their stalls in Trade Fair like nail stories, chocolate hub, bookmarks, paintings, handmade cards, etc. And students are awarded with Budding Entrepreneurs title by the institution.
it's real time होता है, बच्चे बनाते भी हैं, बच्चे ट्रेड भी करते हैं, and it's not only single day event. बाद में एनालाइज भी किया जाता है in case बच्चे have you got your break even or not. So what are the strategies to opt for that? So it's not the single day event only. It's worth mentioning here that HME has given birth to many women entrepreneurs also. In addition to this, various entrepreneurship, various awareness camps, seminars and workshops are also organized from time to time for the benefit of the students. Today's seminar is also a humble step towards this direction. I hope we all will be benefit and will surely carry rich learning experience with us. So my message to the students, rise up dear students and hear my call, for you have the power to conquer all. Awaken the entrepreneur within your heart and let your ambition be your guiding star. Your potential is great, your future bright. So let nothing hold you back from flight. Be bold, be daring and take the lead. For there is no limit to what you can achieve. With hard work and determination, you will blaze a path to innovation. So heed my words and take the cue, for the nation needs more entrepreneurs like you. So be Swavlambi. This is my message to the students. Thank you. Now for further proceedings, I would like to hand over the dais to my colleague Mrs. Anchal. Thank you, Shivali ma'am. Good afternoon, everyone. So let me introduce to you all our first resource person of the session, Mr. Pankaj Jindas, among young citizens and motivating them to become a good job creator. So today, he is with us to guide that how young generation can develop their skills and capabilities to become an entrepreneur. So not taking much time, I invite you, sir, to the podium and to enlighten our students about the Swalambhi Bharat Abhiyan. Our next resource person, Mr. Devinder Singh, Nodal Officer, Prime Minister Employment Generation Program, Punjab. He is also a National Executive Member, Sehkar Bharti, and Chairman, NYCS, Punjab, Chandigarh, and holding a position as a President, Sapta Sindhu, Dr. Bhimrao Ambedkar Study Circle. So sir, I invite you to enlighten our students and providing them the knowledge about the various government schemes and the facilities available for startups. सिलेबस आपके बीच में पड़ा है और डाला है कि आप ऐसी पढ़ाई कर सको कि आपको नौकरी मिल जाए जल्दी। अगर नौकरी नहीं तो फिर क्या, क्योंकि सरकार सभी को नौकरी तो देने से रही। अगर घर में भी हम 4 है तो हर एक बच्चा तो सिलेक्ट नहीं हो सकता है। वो बहुत ही ब्रिलियंट है कि इसमें 4 के 4 सिलेक्ट हो जाए या 2 के 2 सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सरकार ने स्किल इंडिया के तहत कुछ प्रोग्राम तय किए हैं, कुछ कोर्स तय किए हैं। अब जैसे आप देखिए कि अपने बच्चे, सारी लड़कियां बैठी है, अब जो बच्चे हैं वो पायलट भी बन रही है, ट्रेन की जो ड्राइवर भी बन रही है। आप अगर आप पिंजौर जाओ घूमने के लिए तो सब जो लोको मोटर है वो पायलट कौन है? ट्रेन की महिला है अपनी। अब तो पायलट जो है लड़ाकू विमान की वो भी महिला है। इसके बावजूद आप देखोगे कितनी लड़कियां या कितने जो ऐसे प्रोफेशन में आ रही हैं जो होटल मैनेजमेंट में होटल चला रही है। तो जिस तरह विषय शब्द सामने आया है कि स्वावलंबी भारत अभियान, स्वदेशी जागरण मंच और ऐसे 18 एक संगठन, विचार परिवार दे संगठन हैं, जो ऐसे 18 संगठन और समाज दे 12 ऐसे संगठन जिस दे विच असी सब ने सुनिया होएगा अमूल, सुने सब ने? जोहो ग्रुप है एक, विच इज अ IT सेक्टर कंपनी पंजाब केसरी। ऐसे 12 सामाजिक संगठन सब ने मिलके इस अभियान को शुरू किया कि जिहड़ा आने वाले 7, 8, 10 साल चलेगा। क्यों कि साडा देश
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ GDP, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो ये ठीक है, ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो उस समय GDP ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 34% ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਏ 18 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ क्या? ਲਗਭਗ 4.5%। तो ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਸੀ, क्या उसनू अज फिर तो असी उसी परिस्थितियां नू वापस लेके आ सकते हाँ? घर दे अंदर रोजगार, हर पिंड दे अंदर रोजगार। तो ऐसा एक उपराला जिहड़ा है, ये 30 संगठन मिलके स्वावलंबी भारत अभियान दे नाते इसनू कर रहे हैं कि साडा जिहड़ा युवा शक्ति है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। जॉब ना कि जॉब लेने वाले। सभी को समझ आ रही है हिंदी? ओके। अभी सभी स्टूडेंट की क्या है कि जैसे हम +1 करेंगे, कॉमर्स करेंगे, BCom करेंगे, MCom करेंगे, उसके बाद उनको लगता है वो टारगेट अपना निश्चित नहीं कर पा रहे कि उसने CA बनना है, कौन सी जॉब में जाना है, या उसने कंपटीशन में तैयारी करके वो जॉब मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती। सभी के साथ ये समस्या है ना। और अब तो और टफ कंपटीशन हो गया कि पॉइंट पे जॉब का अब इंटरव्यू भी खत्म हो गया। पहले स्वास्थ्य चलती थी, अब वो भी काम खत्म हो गया। अब जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट है, वही जॉब पा पाएंगे। और जिनके पास 90% से नीचे का नंबर है, वो तो कहीं खड़े नहीं हो रहे। और जो भारतवर्ष में ऐसी संरचना है, 140 करोड़ हमारी संख्या हो गई है, और जॉब कितनी है? कश्मीर लाल जी बताएंगे, लगभग 3% के आसपास। सारा डाटा उनके पास है। तो हम कितने जॉब हम ले सकते हैं? एक तो ये विचारने विषय है। एक हमारे जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो पढ़ाई की व्यवस्था है, MSc BSc, उसके बावजूद भी आपको कंपटीशन लड़ना पड़ेगा ना। कई लाखों में एक पोस्ट है, उसके लिए कई लाखों इंटरव्यू है, कई लाखों एप्लीकेशंस है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में PN की पोस्टें निकली थी। PN समझते हो, चपरासी। उसके अंदर उसमें 35% आपको सब्सिडी है, यानी आपने 1 लाख रुपए लिया तो 35% आप माइनस करो, कितने? 65,000 आपको माफ करने, आपको मोड़ने हैं। ठीक है। और उसमें आप अगर यहाँ से चंडीगढ़ से आप होशियार यहाँ पे आओ, जलंधर पे पहुंचो, तो वहाँ पे 4-5 ढाबे आपको मिलेंगे। उसमें एक होशियारपुर का ढाबे पे रुके आप, होशियारपुरिया, वहाँ पे आपने वो खाई होगी एक बर्फी, वो खाती बोर्ड ने स्पॉन्सर किया है। एक आप बठिंडा में राजा ढाबा देखा आपने? अगर आप बठिंडा जाओ, लुधियाना जाओ, वो हमारा ही स्पॉन्सर किया हुआ है। ऐसे भी फतेहगढ़ में हमने जो 3-4 जो आपने चाय पी है, चाय आजकल चस्का बड़ा चला हुआ ना चाय का, चंडीगढ़ में मैं ले जाऊंगा अपने प्रचारकों को, तो उन्होंने आज वो लाखों का बिजनेस हो गया है। एक अपने 46 सेक्टर में हमने चाय का बिजनेस स्टार्ट कराया है। 15 रुपए का कप है, लाइनें लग के चाय मिलती है। उसके टर्नओवर अभी से मैं अभी पूछ तो नहीं पाया, लेकिन हम एक दिन विजिट करने गए थे। चाय का प्याला उसका नाम है। और वहाँ स्टूडेंट इतने हैं, वो कोचिंग के लिए आप जैसे स्टूडेंट आते हैं, 46 सेक्टर हब है कोचिंग का, उसकी बड़ी इनकम अच्छी होगी, तो बाहर क्यों जाएगा फिर? और उसने हमसे 1 लाख रुपए लोन लिया था, और वो भी शहर के अंदर उसको सब्सिडी कम मिली थी। लेकिन वो बेचारी महिला कहने लगी जी अब मुझे लोन की जरूरत ही नहीं, अब तो मुझे ये बताओ कि जो मेरा पैसा है मैं FD उसकी कैसे कराऊँ? ये जो साथ वाला जो शोरूम है, यानी वो शोरूम नियर वो बूथ है, ये मुझे कितने का मिल सकता है? उसकी 1.5 करोड़ कीमत, आप देखो 1.5 करोड़ कितना होता है, तो 1.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। तो इसलिए योजनाएं बहुत ही है। मैंने आपको एक छोटी सी योजना बताई है। हमारे खादी बोर्ड में हर एक तरह का आप कोई भी काम कर सकते हो, महिलाओं से रिलेटेड, जेंट्स से रिलेटेड, बुटीक आप खोल सकते हो, खादी का काम इतना ब्रांडेड है उसको आप कर सकते हो, कोई भी फर्नीचर का काम कर सकते हो, लाइटिंग का काम कर सकते हो। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है
बहुत अच्छा है। तो ये जैसे डिजिटल कैफे चला रहे हैं अपना, और ये बच्चा चॉकलेट्स का काम कर रहा है, उसके लिए कैसे लोन वगैरह या क्या मिलेगा? और वो बच्चा भी हमारा बिजनेस में है, तो आप इनको से थोड़ा सा फोकस में रख के अपनी स्कीम्स मैं बेटे हाँ, एक हमारा है उस पर खोना है, उसको वह भी साइट बन गई है। उसके बाद आपने अपने फार्म अपलोड करने हैं, अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना आपका पैन कार्ड बन गया तो ठीक है। और एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी भाई आपने काम क्या करना है, फर्नीचर कितने का होगा, वर्किंग कैपिटल कितने का होगा, सामान के लिए क्या, ये छोटी छोटी बात। अगर से आपने डिजिटल वो कैफे का काम करना है या चॉकलेट का, उसके अंदर आपने टेबल बनाना है, एक महिला काम करने वाली होगी, एक उसको रैपर को वो करने वाली होगी, है ना, एक मशीन में होगी, तो ये 4-5 एम्प्लॉय की तनख्वाह कितनी होगी। एक हमें प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर अपलोड कर देना है, वो हमारे पास पहुँच जाएगा। मेरा नंबर भी नोट कर लो। उसको हम बैंक मैनेजर को कह देंगे जो जिसमें आपकी जान पहचान है वो, नहीं तो आप हमें बताइए कि इस बैंक में हमने लोन कराना है। फिर हम वहाँ पे नोडल बैंक जो है उससे कंसल्ट बात करेंगे, एसडीएम से बात करेंगे या लीड मैनेजर से बात करेंगे या सीजीएम से बात करेंगे। उसके बाद आपका लोन आपको बैंक मैनेजर कॉल करेगा। बैंक मैनेजर जैसे ही कॉल करेगा आपने उनको जाके अपने ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल सबमिट कर देने हैं। अभी तो हमने ऑनलाइन अप्लाई किए, फिर उनको दे देने हैं। इसमें आपको अगर जितना भी लोन रिक्वायरमेंट है वो आपके खाते में डिस्बर्स कर देंगे। और उसके बाद पहली किस्त आपको डिस्बर्स होते ही से आपने 1 लाख लोन लिया तो 35,000 रुपये हम आपको दे देंगे, यानी आपके खाते में चला जाएगा। और उस 35% पे यानी 35,000 पे ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे अपना जो काम स्टार्ट करना है काम स्टार्ट कीजिए। 3 साल तक आपने इस पे इंटरेस्ट भी इसमें बड़ा नॉमिनल है, आज की डेट में 9-9.5% चल रहा है साल का। वो जैसे आपकी किस्त बैंक को जाती रहेगी, 3 साल तक आपने इसको करना है। 3 साल के बाद हम फिर दोबारा आएंगे आपके पास, आपके देखेंगे भी आप काम कर भी रहे हो कि आपने लोन वैसे ले लिया। 1 लाख तो मैंने वैसे बताया ना, ये 1 लाख से 50 लाख तक है। फिर हम आपकी एक फोटो खींचेंगे आपकी दुकान की, आपने काम किया कि नहीं किया। उसके बाद हम आपको फिर मोटिवेट करेंगे कि इसको आप टॉप अप कर लीजिए, यानी 1 लाख है तो 2 लाख लीजिए। उसके ऊपर फिर सब्सिडी है। फिर वो कोई प्रोसेस जो आपने अब किया वो कुछ नहीं करना। आपका आधार कार्ड हमारे पास है, बैंक के पास भी है, आपकी टर्नओवर भी हमारे पास आ जाएगी, आपकी फोटो भी है, आपने अप्लाई किया हुआ सारा डाटा हमारे पास है, तो वो आपको डबल हम लोन दे देंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है मार्केटिंग का। जैसे मैडम ने बताया, मार्केटिंग सबसे बड़ी समस्या है, वो भी हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। मार्केटिंग के लिए एक हमारा बोर्ड बना हुआ है, 7 मेंबरी बोर्ड है। आपने अपनी प्रोडक्ट की बात वहाँ करनी है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, उसकी हम देखेंगे भी ये प्रोडक्ट ठीक है, और उसको जो खादी बोर्ड के, खादी कमीशन के आउटलेट है, वो सारा सामान वो खरीद लेंगे। अभी सहकार भारती के भी पूनम जी बैठे हैं और ये राजीव जी, अब वो कमीशन ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सारा प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। अभी मेरे से बात कर रहे थे पंकज जी या हाँ राजीव जी कर रहे थे, तो गुड़ का एक प्रोजेक्ट है होशियारपुर में, 30 रुपए किलो गुड़, खादी के जितनी कुल्हाड़ियाँ थी हमने मार्केट को दे दिया, तो उनका सामान खरीदा गया और उनको पैसे आ गए। नहीं तो गुड़ खरीदने के लिए के जो आप देखते थे उसमें वो केमिकल मिलता था। तो आज अगर आप होशियार, अभी मेरे को एक गुड़ देने वाला आया बंदा, मैंने उसे लगभग महीने पहले कहा था, यानी मेरा नंबर, नोडल ऑफिसर का नंबर महीने बाद आ रहा है, इतना ही गुड़ की सप्लाई है। ऑर्गेनिक गुड़ की बात करो, वैसे गुड़ नहीं। तो ये अगर आप अच्छे मन से, गुड़ यानी गुड़ होना चाहिए, फिर उसमें मिलावट कोई नहीं। मैंने खादी का एक कुर्ता पहना है, चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। ये कपड़ा आपको चंडीगढ़ में बहुत कम मिलेगा, ये कपड़ा आपको दिल्ली से ही मिलेगा। तो अगर आप इसके ये ऐसा कपड़ा हम कहाँ से लाएंगे, या तो कलकत्ता से लेके आएंगे या दिल्ली से लेके आएंगे। अगर अच्छा आपके पास ब्रांड है तो आपका सामान वैसे बिक जाएगा। तो वहां पे अगर आप चंडीगढ़ में जाओ, वहां पे आता है पहले ही 10 दिन में कपड़ा खत्म हो जाता है। तो ये ब्रांडिंग की बात है। अगर आप सच्चे मन से ठीक तरह से काम करेंगे, ब्रांडिंग की जिम्मेवारी हमारी, सामान की जिम्मेवारी हमारी, आपको सिर्फ काम करना है। उसमें जब काम करना है, फिर काम तो फिर डट के करना पड़ेगा। 1, 2, 3 साल आपको भूल जाना है। तो ये खादी बोर्ड और सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। बैंक पे हम बैंकों की मीटिंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर ने हमें बड़े अधिकार दिए हुए कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इवन गांव के अंदर जाके हम कैंप लगा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, सरपंचों को बुला रहे हैं, महिलाओं को बुला रहे हैं। तो जितना कैफे है, साइबर कैफे जैसे आपने बोला, या बुटीक है, वो महिलाओं को जैसे ये सिलाई का काम है मैडम, वो दे रहे हैं हम करने के लिए, ठीक है। उनकी जो अभी एक NGO है चंडीगढ़ में, उसने एक ठेला बनाया है मैडम, ठेला उसने बनाया 80 रुपए का, वो बाई चांस मेरी गाड़ी में नहीं है, और उसने चंडीगढ़ की जो सेक्टर 17 की मार्केट है उसको बेच दिया 100 रुपए में। और वो ठेला ब्रांड, उसका नाम है सागर रत्ना के मालिक ने उसको खरीद लिया। आप देखिए उसमें हम उसको स्पॉन्सर भी मिल गई मैडम को,
उसके ठेले भी बिक गए, लगभग उसे 6 या 7 लाख रुपए के उसकी परचेज होगी। तो मैं उससे पूछा था कि आपको मैडम बचा कितना, कहती सर भगवान ने बड़ा कुछ दे दिया, मेरे को तो भगवान ने सुनया, मैं मार्केट में तो पब्लिसिटी करने गई थी, मेरा सारा सामान ही बिक गया। 6-7 लाख रुपए की उसको वो होगी। वो कपड़ा लेके आई है नोएडा से, सिलाई की वो एक सिलाई मशीन उसके 18-19 स्टूडेंट्स है उनसे कराती है, 2-3 टीचरें रखी है और उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग होगी। चंडीगढ़ की कमिश्नर ने उसको इस 26 जनवरी पे अभी उसको अवार्ड दिया था। तो ऐसे करने के लिए बहुत है। हमारे यहाँ बैंक है, अपने स्किल इंडिया के है, जितने भी बड़े बड़े बैठे हैं लोन देने के लिए, वो सब हमारे पास है। नोडल एजेंसी KVIC DIC, तो हम इनको कोऑर्डिनेट करके आपको फैसिलिटी पूरी पहुंचा देंगे। काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये एक छोटी सी बात खादी बोर्ड की रखी है, आप काम कीजिए, जैसे आप पास आउट होकर जाएंगे मन में जज्बा होगा। आप खादी बोर्ड का ऑफिस हमारे हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट में भी है और पंजाब के हर एक जिले में तो है ही है। खादी बोर्ड का ऑफिस सेक्टर 17 में है, वहाँ पे मिल सकते हैं। मेरा नंबर भी नोट करना। पंकज जी है, अमरी लाल जी हमारे अखिल भारतीय अधिकारी, आपको डिटेल बताएंगे सारा। और सिद्धार्थ not only the startup schemes but the various loan facilities available for your startups, and also sir has explained you each and every step that how we can arrange the money, how we can invest, then marketing activities also. So he explained each and every step so well in order to encourage the entrepreneurship. So now our next speaker, Mr. Kashmiri Lal, All India organizer, Swadeshi Jagran Manch, New Delhi. Very studious, skilled organizer, good speaker, written so many contemporary topics in various newspapers and magazines. He has extensive contacts with the like-minded indigenous, nationalist organizations and businessmen's organizations. So sir, kindly come to the podium for the further guidance. तो क्या किया जाए? तो उस लड़की ने सोचा कि मुझे कोई और स्किल तो है नहीं, लेकिन बचपन से उसको एक शौक था। वो क्या था कि कोई टीवी का सीरियल देखा, कोई फिल्म देखा, उसमें जो विशेष ड्रेस देखती थी तो उसका डिजाइन वो बना लेती थी। इसको एथनिक क्लॉथ कहते हैं ना कि ये उसको बहुत शौक था डिजाइन करने का। उसने कहा मैं ये काम शुरू करती हूँ। अब जैसे ही कोई काम शुरू करने लगा तो बोले तो पैसा कहाँ से लाए? जब भी कोई काम शुरू करेगा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, स्कीम कहाँ से आए? दुनिया में ज़्यादातर सफल लोगों ने कहीं बाहर से नहीं मांगा, अड़ोस पड़ोस से मांगा, रिश्तेदारों से मांगा है। उसको 6,000 रुपया उसने उधार लिया और 6,000 उधार लेकर के उन्होंने काम शुरू किया। और एक दर्जी को, बुजुर्ग दर्जी को उसने कहा कि मैं डिजाइन बनाऊंगी, तू सिलाई कर देना। उसका काम नहीं चलता था, उससे काम शुरुआना किया। अब लंबी बात को छोटी कर देते हैं। वो महिला आज उस काम से जो शुरू किया उसने, और गली के अंदर जो कपड़े बेचने शुरू किए थे, पर चूड़ीदार पजामा और ये जिस प्रकार के अच्छे डिजाइन वाले लोगों ने देखा तो एक और बना दो, शादी के लिए और बना दो। धीरे धीरे करते हुए उसी 6,000 की इन्वेस्टमेंट में से, जिसमें 800 रुपया आने जाने का लेके किराया निकल गया था, दर्जी को दिए थे। आज वो महिला उसके 76 शहरों में, भारत के मेट्रो सिटी में 180 नहीं, अभी 225 आउटलेट हैं उसके अपने नाम से। क्योंकि नाम जब रखने की बात आई तो बेटी ने कहा, पंजाबी महिला थी, बेटी बोले कि माँ तुम भी कोई नाम रख दो। बोले नाम क्या रखे? बोले ब्रांड बना दो। अच्छा बीबा बनाती हूँ। तो लड़की समझ रही, बीबा बेटी को बोलते हैं, बीबा बीबा कहा, बोले बीबा ही रखूंगी। आज वो बीबा ब्रांड है। 600 करोड़ रुपया साल का उसका प्रॉफिट। वो महिला, इसका नाम मीना बिंद्रा है, कभी उसकी स्टोरी पढ़ना, कैसे 6,000 उधार मांग करके 600 करोड़ सालाना कमाती है। इसके अलावा हजारों लोगों को कंसल्टेंसी देती है। मेरी बात सुनने के बाद उसको मत याद करना, एक बार अपने अंदर झांक करके ये देखना कि हमको 6,000 नहीं मिलेगा, वो तो 50,000 की स्कीम बता रहे हैं। 6,000 से शुरू करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं? अगर आपको अपने पर विश्वास हो तो इस पर ताली अपने लिए बजा सकते हो।
मैं जो बताऊंगा कहीं ना कहीं मैंने सुना या देखा है, उनके बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस संस्था का स्वावलंबी भारत अभियान का किसी को, महिला को एक संरक्षक बनाना था। तो हम नाम ढूंढने लगे तो उसमें से एक नाम आया। उसकी स्टोरी क्या लिखी हुई थी कि लड़कियां जो है वो कभी ब्रूवरी में, आपने नहीं, जो शराब तो नहीं कहते उसको, क्या बोलेंगे, बियर कहते हैं, इस प्रोफेशन में कभी कोई महिला नहीं है। उसके पिताजी थे, वो ब्रूवरी का ही काम करते थे। लड़की के नंबर बहुत ज़्यादा थे नहीं, हाथ थक कर उसने कहा, पिता ने कहा कि ये इसी कोर्स को ज्वाइन कर ले, वहाँ एकदम फ्री उसको दाखिला मिल गया। लेकिन जब बाहर निकली तो किसी फैक्ट्री के अंदर लड़की को ब्रूवरी का मैनेजर नहीं बनाते थे, एक कंपनी ने बनाया। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में शुरू करिए। किसने कहा, लेकिन आप हमारे पार्टनर बन जाए। बोले पार्टनर क्यों? तो उन दिनों एफडीआई के नियम ऐसे बने थे कि हिंदुस्तान का एक पार्टनर रखना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। किसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप सिर्फ 10,000 रुपया हमको दे दीजिए तो हम आपकी पार्टनरशिप लिख देंगे, नाम के लिए। पिता से पूछा, पिताजी के पास पैसा ज़्यादा नहीं था, और एक कोई छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फर्म लिखा हुआ नाम, उसके कागज हमारे साथ जोड़ दो, बस बाकी का काम अपने कर लेंगे। ये लड़की पिताजी को बोली, पिताजी कार तो आपकी पुरानी है, चलती नहीं है। अंदर खड़ी की तब भी कोई उठाने वाला नहीं, बाहर करेंगे तब भी कोई उठाने वाला। उससे गैराज से बाहर किया, गैराज के ऊपर अपना नाम लिख करके काम शुरू किया। आप सर्च मारना, हिंदुस्तान की 2021 की सबसे अमीर महिला कौन है, तो उसकी स्टोरी वही होगी कि जिसने ब्रूवरी का कोर्स किया और बायोकॉन की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की किरण मजूमदार शाह, ये मैं उसकी कहानी आपको मुझे लगता है कि जिसके अंदर कुछ अर्थ निकलता है, झूठी कहानियां, सब के सब फैक्ट चेक करोगे तो आप गलत लिखे। उसके ऊपर 6 घंटे लगा देते हैं। इस 6 घंटों में से 2 घंटे अपने जो घर का प्रोफेशन है उसको सीख लिया, 2 घंटे कोई ना कोई नया तरीका आपने सीख लिया। आप कभी जिंदगी में डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। घर में कुछ भी परिस्थिति बने, आप कमाई तो मैं उस समय कर रही थी जब कॉलेज में पढ़ती थी, अब तो मैं खाली हूँ, मैं क्यों नहीं कमा सकती? इसलिए पहला काम अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। दूसरा काम वो सोचना, कमाई इनोवेशन में होती है। कालका आपने सुना होगा, कालका में एक कॉलेज था, जो मैं गया, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ लड़की ने एग्जीबिशन लगाई थी। तो उनको मुझको बताया कि ये लड़की बहुत अच्छा कमा रही है, ये महीने में 15-20 हज़ार कमाती है। तो क्या, वो लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी कुम्हार थे, काम चलता नहीं था, मिट्टी मिलने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा तू छोड़ दे। तो जो प्लेसमेंट ऑफिस में मैडम थी, मैंने उसको कहा मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। बोले क्यों? कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे पिताजी का काम नहीं चलता। बोले तू चलाना जानती है क्या, बर्तन बनाना जानती है? बोले वो तो मैं घर में सीखती हूँ, साथ में पिताजी से अच्छा बना लेती हूँ। बोले कि नहीं, कमाई उसमें नहीं होगी। तो उसने कहा एक कसौरा बना। उसने बनाया कसौरा, इस कसौरे को ऐसे शक्ल बदल दे। मैंने गोल मतलब टेढ़ा कर दे। अब टेढ़ा करते ही एकदम आर्ट की चीज बन गई। फिर कलर कैसे करने हैं, वो क्या, इस पर कोई ना कोई आप वाक्य लिखो। अच्छा, वो लड़की को बताया, अच्छा वाक्य लिखा। अगले दिन जब मार्केट में रखा तो 200-200 रुपये का बिक गया, जो पिताजी 2 रुपये का बेचते थे। अपने घर में पिक्चर उनकी मत लगाओ कि जो नौकरी करके बहुत बड़े बने हैं, पिक्चर उनकी लगाओ कि जो थोड़े से काम शुरू करके आज हजारों लोगों को काम दे रहे हैं। आपका नैरेटिव बदल जाएगा, आपका माइंड सेट बदल जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि जब भी करो तो आप भी अड़ोस पड़ोस की चीज खरीदो, इसको बोलते हैं स्वदेशी। हम फॉरेन ब्रांड ना खरीदें, हम जो भारत की कंपनी उसको देखें। एक लड़का जो मैंने कई साल पहले गुरुकुल में गया तो उसने हमको लस्सी पिलाई, तो उसको गुरु ने कहा बेटा इनको शीर्षासन करके दिखाओ। बोले शीर्षासन करो या मयूर आसन करो? तो गुरु जी ने कहा मयूर आसन कराओ। तो उसने लस्सी का जग हमें दिया और उसके बाद वो लड़का दोनों टांगों पर ऊपर कर लिया और हमारे 4 चक्कर लगा दिए। एक दिन मेरे साथ जो व्यक्ति गया था वो पूछने लगा, उस लड़के को जानते हो?
मैंने कहा किसी सर्कस में काम करता होगा। बोले नहीं, ये लड़का आज देश में 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी चलाने वाला बाबा रामदेव। कोई MBA की डिग्री नहीं है, कोई हाईली प्लेस्ड व्यक्ति नहीं है, कोई माँ बाप की बहुत संपत्ति नहीं थे, बस उसने इतना सोचा नए नए काम करना, समय हमारा समाप्ति की ओर है, पढ़ाई जो आप पढ़ रहे बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 3-4 घंटे में पढ़ी जा सकती है, पर हमारा फोकस नहीं होता। मैं लड़कों से पूछता हूँ, लड़कियों से पूछता हूँ कि छत पर आपने अपना चुनरी सुखाई और गर्मी के कारण जल गई, ऐसी होती है क्या? होता है क्या? आपने किताब छत पे रखी, बोले कल बहुत गर्मी थी मैडम, मेरी किताब जल गई, कॉपी में लिखा था बहुत, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। माने क्या हुआ, सूरज की रोशनी कितनी भी हो वो कपड़े को जला नहीं सकती, वो किताब को जला नहीं सकती, ये फैक्ट नहीं है, ये झूठ है। लोगों का कितना एक साल में मरना हुआ है, और जिन्होंने अपने आप को खुद मारा है, सुसाइड किया है, वो और ज्यादा। इस जो सुसाइड करता है पहले 22 बार 20 बार पहले ट्राई करता है, सफल नहीं हो पाता, फिर उसके बाद कहीं जाकर के, तो ये जो डिप्रेशन है ये लंबा चलता है। डिप्रेशन किसी के कारण नहीं होता है, डिप्रेशन मन के कारण से होता है। यहाँ बैठे बैठे आपको लग गया कि भूकंप आ गया तो कमरा दब जाएगा, तो डरने लग जाएंगे, पसीना निकल जाएगा, कारण नहीं है। इसलिए अपने मन को पॉजिटिव रखिए। अगर वो कितने वाले बताया था, महिला कितना कमाती है अचार बेच करके, कितना बताया था, उसका नाम क्या था, उस लड़की का क्या नाम था जिसको 6,000 उधार लिया था और आज 600 करोड़ है, मीना बिद्रा। और उसका क्या नाम था जिसने 10,000 उधार लिया था और आज हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला है, लेकिन उसके साथ मैंने कुछ और स्टोरी सुनाई। मुझे कब खुशी होगी कि मैं यहाँ आया, आज से 10 साल बाद किसी बड़ी फैक्ट्री में जाऊँ और वो कहे कि ये फैक्ट्री एक लड़की चलाती है, और जब मैं उसमें कहने को आपकी कितनी है, हमारे पास 5,000 एम्प्लॉई है, हम 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। बोले सर, बोले क्या आप कभी महात्मा हंसराज कॉलेज में आए थे क्या? मैं कहाँ आया था, मैं भी जो हाथ खड़े कर रहे थे ना उनमें से मैं एक थी, और आज इतना बड़ा समारोह किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए स्वावलंबी अभियान है और इसी की एक ब्रांच हम यहाँ खोलना चाहेंगे जो लगातार आपको इंस्पायर करता रहे, लगातार ऐसे लोगों को मिलाते हैं। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गई थी, सर ने कहा था जज्बा होगा तो सफलता मिलेगी, जज्बा होगा तो सफलता मिलेगी, हौसला होगा तो उड़ान मिलेगी। जज्बा होगा तो सफलता मिलेगी, हौसला होगा तो उड़ान मिलेगी। कभी गिरोगे तो कभी उठोगे, कभी गिरोगे तो कभी उठोगे, पर खुद पे विश्वास होगा तो दुनिया जरूर सलाम करेगी। अगर खुद पे विश्वास होगा तो दुनिया जरूर सलाम करेगी। मैं वेलकम करना चाहती हूँ our respected principal ma'am, Professor Dr. Mrs. Ajay Sareen, the source of motivation, guidance and constant support for us, and to our dear Anjana Bhatia ma'am, Dean Innovation and Research. As Hansraj Mahila Mahavidyalaya is well known for its innovative practices, and presenting green greetings is one of them. I request Principal Madam, Meenu ma'am, Beenu ma'am, Dr. Anjana ma'am, souvenir हंसराज महिला महाविद्यालय की तरफ से मिस्टर कश्मीरी लाल जी के लिए। इनके बाद है सीए पंकज जिंदल जी, नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी एसबीए स्वावलंबी। इनके बाद मिस्टर देविंदर सिंह जी, नोडल ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पंजाब। सिद्धार्थ शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वावलंबी भारत अभियान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्वदेशी जागरण मंच। And thank you especially Anchal ma'am. So finally we are on the
conclusion of this seminar, that is Wake Up the Entrepreneur in You, a mission for self-reliance, being organized by Commerce Club, PG Department of Commerce and Management today, in association with Swadeshi Jagran Manch, under the Swalambi Bharat Abhiyan initiative. I thank Ma'am Principal that the moment this email was received by her, she immediately asked me and Anjana Ma'am to coordinate and think about this program, because the advantage I can see when you were answering the whatever sir was asking, the questions, all the success stories he shared with you, I think the success of the program was automatically measured, that everything was perfectly heard by you. So I thank Ma'am Principal for giving this opportunity to the Commerce Club for organizing such a wonderful event for the benefit of the students. I thank all the eminent resource persons, Shri Kashmiri Lal Ji, All India Organizer and Head of the Swadeshi Jagran Manch, New Delhi, CA Mr. Pankaj Jindal, National Secretary Finance Committee, SBA, Mr. Devinder Singh, Nodal Officer, Prime Minister Employment Generation Program, Punjab, Mr. Siddharth Sharma, Coordinator of SBA, Mr. Vinay, Organizing Secretary of Swadeshi Jagran Manch, and these were the people on the dais. I'm very thankful to you, and also for sharing all the wonderful things with our students, for sharing the scheme under Khadi and Village Board, and how the students can avail the benefit of loan, and how they can flourish and prosper and start their own entrepreneurial avenue. Now off the dais we have Mr. Akash Rathore, Head SGM Jalandhar and Senior Industrialist. He is of Sant Walls, and I also wish to say over here, sir, that our association with your father, Mr. Rakesh Rathore, is not new. He had been visiting this institute earlier, and now having you amongst us is really a pleasure. And we look forward to many more collaborations with you as well for students and any sort of industrial training and all. Mr. Rajiv, Mr. Sandeep Chibber, Mrs. Poonam Dinesh, members of Sehkar Bharti organization, I'm thankful to you for your benign presence over here. To all the students, their students who are over here, that you came over here in order to listen wholeheartedly. और जब सर ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि उनको बाहर खड़े हुए ये नहीं पता चल रहा था कि अंदर 200 बच्चे बैठे हैं और वो भी गर्ल्स बैठी हैं और बाहर उन्हें पता ही नहीं चला, तो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू फॉर द डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. Thankful to the people all around over here, starting from Mr. Arvind Chandi, Mr. Rahul, Mr. Ajay and Mr. Vidhu Vora, and Shifali ma'am and Anchal ma'am for very wonderful stage conduct, and Meenu ma'am and the whole members of PG Department of Commerce and Management for helping and rendering cooperation in making this event successful. I also thank Almighty for granting us all these ideas and making. देखो जब तक भगवान की रजा नहीं है तब तक कुछ हो नहीं सकता, तो ये रजा भगवान की थी कि हम सब इस छत के नीचे आज इकट्ठे हों, एंड विद पॉजिटिविटी वी एंड ओवर हेयर. और लास्ट में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी कि सर ने बहुत सारी हमें एग्जाम्पल्स दी. कहना वो यही चाहते थे कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो और आपको किसी प्रॉब्लम रास्ते में आती हैं, तो they are there to help, they are there to guide. Of course, you can discuss your problems with us and we can share further and find out the solution and tell it to you. पर उसका सबसे पहला स्टेप आपको ही लेना है. आपको ही लेना है पहला कदम अपनी प्रॉब्लम को, कि किसी तरह की जो भी आपके बिजनेस स्टार्ट करने में आ रही है, तो कोशिश आपको करनी है और इतना यकीन मुझे है कि हल तो ज़रूर निकलेगा.
तो कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. So on this note, we say goodbye and we all will gather for a group photograph outside SDC on the stairs. पहले गेस्ट जाएंगे, फिर स्टूडेंट्स साथ में ज्वाइन करेंगे. ये